أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. سسٹر کیسے ہیں سب لوگ؟ الحمدللہ بخیر. اچھا جی، یہ ایک ذرا عادت بنائیے، جب سلام کیا جائے تو اکٹھے ایک ساتھ جواب دیا کریں. تو اپنی عادتوں میں، اچھی عادتوں میں یہ ایک عادت بھی شامل کریں. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. میں آپ کی قرآن ساتھی نورین اکرم. ویسے تو اب تک آپ سب کو یاد بھی ہو گیا ہوگا میرا نام. اور ہم مل جل کر اپنا کورس 3 کر رہے ہیں، اور الحمدللہ سے ہمارا پیج نمبر 8 یعنی کہ 8واں صفحہ ہمارا شروع ہو گیا. ادھر سے شروع کریں یا ادھر سے شروع کریں، بہتر ہے کہ ہم ادھر سے شروع کر لیتے ہیں. اس طرح سے کہ یہاں پر ہمارا 5واں پیج ختم ہوا تھا اور یہ ہمارا 6واں پیج شروع ہو گیا. 6واں پیج کمپلیٹ، 7واں کمپلیٹ، اور اب 8واں پیج ہم کریں. آج ہم اشارہ بھی کریں گے، یعنی کہ ہر پیج کے 4 حصے کیے گئے ہیں اور آج ہم دوسرا حصہ کریں گے انشاءاللہ. آج ہم صرف ایک آیت مبارکہ کریں گے 60، اور اس میں آنے والے افعال، اسماء اور مختصر سی شرح، اسباق، پلان جیسے ہم دیکھتے ہیں اسی طرح سے ہم آگے بڑھتے جائیں گے. ایک کوئک سی دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے کورس 2 میں شروع کی تھی سورہ فاتحہ، جو ہم نے کورس 1 میں بھی کی ہے. ویسے اس میں ہم نے سیکھی تھی 12 عادات. اس کے بعد ہم نے پوائنٹر جو سیکھے تھے وہ یہاں سے شروع ہو گئے سورہ فاتحہ سے. اس کے بعد ہم نے 4 پیجز میں متقین، کافرین، منافقین، یہ ساری ہم نے باتیں پڑھی. اس کے بعد 5ویں پیج سے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں پڑھا کہ وہ پہلے انسان جنہیں ہدایت نصیب فرمائی گئی. اور اب جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ بنی اسرائیل کا قصہ ہے. یہ ایک بڑی قوم، ایک بڑی امت جنہوں نے ہدایت کی قدر نہیں کی. اور آج ہمارا ہاف ہو جائے گا نا، مڈ میں آ گیا ہے. تو یہ ہم پیج پورا کریں گے. ہم یہ نہیں کریں گے کہ 8B کے بعد ہم اپنا مڈ کوئز کر لیں. فائدہ یہ ہو جاتا ہے 8B جیسے ہمارے یہ 3 پیج کمپلیٹ ہو گئے، تو اب اس کے پیچھے 2 پیجز بچیں گے جو ہمارا نیا لیسن ہوگا فائنل کے لیے. اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ فائنل کے لیے 2 پیج، اور پیچھے جو آپ مڈ میں کر چکے ہیں وہ ساری آپ کی اچھی سی پریکٹس ہو جاتی ہے. اچھا جی، ہم اس کو ریوائز کرتے ہیں. اب چونکہ ہم ریویژن میں اشاروں کو نہیں کرتے نا ریوائز، تو میں چاہ رہی ہوں آپ میں سے کوئی کوئکلی ذرا ان کو کر لیں، مختصر بھی پڑھ لیں اور یہ اسی طرح سے پڑھ لیں پورے. جی آسیہ. ہدایت اور نتیجہ: بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو. فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچھڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو. اچھا جی، یہاں والا یاد نہیں ہے ابھی آپ کو آگے بولو. جو کل پڑھا تھا؟ بستی میں داخلہ. بستی میں داخلہ. ہاں، الحمدللہ، بستی میں داخلہ. الحمدللہ. یہ آپ لوگ اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں بک سے؟ چلیں ایسا کرتے ہیں، میں کوشش کروں گی کہ آپ کے ساتھ اپنی بک کے وہ جہاں جہاں سے ہم نے پوائنٹر کو سلیکٹ کیا ہوا ہے اسے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ اسی طرح نشان لگا لیں. بہت آسانی سے یاد ہو جاتے ہیں. اچھا جی، اب ہمارے 8ویں صفحے کے اشارات ہیں: بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ اور سزا. بستی میں داخلہ کریا کو کر لیں، ادخلو کو کر لیں، ادخلو اور کریا. بستی میں داخلہ، داخلے کی بات بھی ہو جائے گی اور بستی کی بات بھی ہو جائے گی. اب جیسے پانی کی دعا ہے، اس میں بھی ہم دیکھ لیں گے بستی، پانی، کھانے، سزا. تو کیا جی، یا کھانا بھی کر سکتے ہیں. بستی، پانی، کھانا، سزا. اچھا جی، پانی کی دعا ہم کرنے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہم نے پچھلی آیات میں کیا پڑھا تھا. مسلسل اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر ہونے والی نعمتوں کو بیان فرما رہا ہے اور نعمتوں کے تعلق سے بنی اسرائیل کے رد عمل کو بھی بیان فرما رہا ہے.
अच्छा जी, यहाँ पर हम असबाक में देख लेते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला से पानी के लिए दुआ करने से पता चलता है कि उन्हें अपनी उम्मत की कितनी फिक्र थी। अब ये एक दाई के लिए भी एक पैगाम है, दावत देने वाले के लिए, कि ये नहीं करना कि आप अपने लोगों को देखें अगर वो गुनाहों में मुब्तला है, किसी भी किस्म के शिर्क में मुब्तला है या वो किसी बुराई में मुब्तला, तो आप उन्हें छोड़ दें, ऐसे नहीं करना, बल्कि अभी तो उनकी नहीं है। फिक्र करनी है। अननेसेसरी माइक जरा म्यूट कर दीजिए। अल्लाह ताला ने मुजज़ाती तौर पर उन्हें पानी अता फरमाया। अभी हम दुआ पढ़ेंगे भी कि किस तरह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिक्र के साथ दुआ की थी अपनी कौम के लिए। खाओ और पियो और हद से आगे ना बढ़ो, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से उम्मत के लिए पैगाम था, ऐलान था। और वो क्या करते थे, वो हर हुक्म की खिलाफ वर्जी किया करते थे, क्योंकि वो थे फासिकीन, थे नाफरमान थे। इन अल्फाज को इसी तरह से साथ याद कर लिया करें ताकि हमें पता चल जाए कि ये जो अल्फाज हैं इनके साथ हम पूरा पूरा टेबल, जो कोई एक भी सीखा हमारे सामने आए तो हमें पता चल जाता है। आज के 8 अल्फाज नए हैं और उनमें से हम देख लेंगे कि कौन से बिल्कुल नए हैं और कौन से ऐसे अल्फाज हैं जो हम उर्दू में समझते हैं या बोलते हैं, या हमें पता ही नहीं होता कि ये अरबी के अल्फाज हैं, हम उनको उर्दू में रूटीन में बोल रहे होते हैं। ठीक हो गया जी। हम तर्जुमा, ये तिलावत पूरी की। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعصوا في الأرض مفسدين صدق الله العظيم। अच्छा जी, वा को अलग करना है और इस का माना हम इस और इजा दोनों का माना हम लेते हैं जब। आगे है इस तस्क़ा, ये टेबल हमने करना भी है, वैसे इंशाल्लाह इस तरह के टेबल हम करेंगे, लेकिन अभी आप मुझे बताइए ये टेबल आपको इसकी बनावट से कुछ लग रहा है कि किसी टेबल के जैसा हो सकता है? इस्तगफार वाला इस्तगफारा इस्तगफारा के जैसा अगर ये है तो अब वहां पर हमने ये इजाफा किया था। अब आप मुझे बताएं इस टेबल के रूट लेटर क्या हो सकते हैं? सीन कॉफ या तीन काफिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसका मतलब ये है कि अगर हमारे सेहतमंद अफाल पक्के हैं तो कमजोर अफाल इंशाल्लाह हम बेहतरीन तरीके से करते जाएंगे। ये मजीद सी ही है और कमजोर है। कमजोर क्यों है बताइएगा? एंड में या की वजह से या की वजह से, एंड शुरू दरमियान इसके कोई माने नहीं रख रहा। ठीक है, अभी हम समझ रहे हैं कि मादा के हरूफ में कोई भी एक लेटर कमजोर आ जाए तो उस पूरे टेबल को हम कमजोर टेबल कह देते हैं। अब ये मजीद ही प्लस कमजोर है। इस तस्का, अब इस तगफरा के माना पर गौर कीजिए, मगफिरत मांगना। इसी तरह से इस तस्का, इसमें पानी मांगने की बात, यानी कि इसमें किसी चीज की ख्वाहिश, चाहना, मांगना पाया जाता है ना। इस तरह के जो टेबल होंगे उनमें हम ये बात देखेंगे। इसके बाद है मूसा। मूसा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम है। ली कौमी ही, अपनी कौम के लिए। फकुलना, फा को अलग करेंगे, कुलना कौला के टेबल से आया है। इसके बाद है दौद, रॉ और बा, और एक हमजातुल वस्ल है। अगर सिस्टर फाइजा हमारे साथ हैं तो वो बताएंगी कि यहाँ पर हम इस जो हमजा के कौन सी हरकत लगाएंगे? इधर जेर लगाएंगे सिस्टर। कल आपने बताया था कि लगाई
کیونکہ ہم نے جو ہے وہ کل آپ نے بتایا تھا کہ اگر زبر یا زیر ہوگا اس کے اوپر مدارے سے لیتے ہیں نا اس کو، جی تو 1 2 3 لکھیں گے، حمزہ لکھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ دیکھیں گے کہ ادھر دوربا یا دریبو میں زیر ہے یا زیر یا زبر ہوگا تو اس پہ زیر لگے گی اس حمزہ پہ۔ الحمدللہ، اب آپ کا یہ کانسیپٹ کلیئر ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ، جزاک اور اللہ۔ یہ ہم نے فعل امر پہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے ہر ایک پہ اپلائی نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ حمزۃ الوصل کے اور بھی وجوہات آ جاتی ہیں جہاں پر ان پہ زبر بھی لگتا ہے، لیکن وہ پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہمیں نظر آئے گی، کیونکہ یہ جو افعال فعل امر کے ہیں اس میں کچھ تو ایسے ہی ویسے ہی پڑے جاتے ہیں، ضرورت نہیں پڑتی، جبکہ ہم نے اسلمہ کے کیس میں دیکھا اس میں فتحہ آئی ہے، وہ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کا اپنا حمزہ تھا، وہی حمزہ اسلمہ والا واپس آ گیا تھا، ٹھیک ہوگا جی، کیونکہ حمزہ جو ہے نا یہ کبھی کبھی کمزور افعال کی طرح بھی ایکٹ کر جاتا ہے، خود کمزور نہیں ہے لیکن کبھی کبھی کمزور حروف کی طرح کام کرتا ہے۔ اچھا جی، اضرب مارو، اچھا جی، اور جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے تو ہم نے کہا مارو بی عصا کا، اپنے عصا کو، دو طرح سے ترجمے کیے جا سکتے ہیں، اپنے عصا کو یا اپنے عصا کے ساتھ کیا کرو، مارو الحجر، پتھر پر، یعنی کہ اپنے عصا کے ساتھ پتھر پر مارو یا اپنا عصا پتھر پر مارو، دونوں کے ایک ہی معنی نکل آئیں گے۔ تو رواں ترجمے میں ہم کہتے ہیں تو ہم نے کہا یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ اللہ تعالیٰ۔ تعالیٰ فرما رہے ہیں مارو، اضرب مار، ٹھیک ہے، مارو اس لیے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں نا ہم، تو ایک تھوڑی سی تمیز اور تہذیب کے دائرے میں ہم معنی اس طرح سے پڑھ لیتے ہیں نا کہ ہم یہ جو مارو ویسے تو ہم جمع کے لیے یوز کرتے ہیں، لیکن جیسے ہم آپ کہتے ہیں نا سنگولر کو بھی تم کی بجائے ہم آپ کہتے ہیں، اگر آپ اس کا ویسے لفظی ترجمہ کریں تو مار اس کا ترجمہ آ جائے گا کیونکہ یہ سنگل ہے، اضرب۔ اچھا جی، فم فجرت، اب یہ کہاں سے آیا ہوگا؟ انقلاب سے، انفعال، انفعال سے۔ آپ انفجرہ کا ٹیبل ذرا اس کے شروع والے پڑھیے جو ماضی کے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو پڑھیے انفجرہ، اس کے بعد انفجر، 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 انفجروا، انفجرتا، انفجرتم، انفجرنا، اور آگے انفجرت، مؤنث کا انفجرت۔ اب یہ جو انفجرت ہے یہ ہمارا آ گیا باب انفعال پہ، اور اس کا میں اگر پوچھوں کوڈ کیا بن رہا ہے؟ الف نون قاف، الف نون قاف، ٹھیک ہو گیا جی الحمدللہ، اور ہم ایک پلس کا نشان لگاتے ہیں، یہ جو ریپریزینٹ کر رہا ہے مزید سیہی کو، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب ہمیں یہ پتا چل گیا یہ مؤنث والا صیغہ ہے، باب انفعال سے ہے، انقلبہ اس کا یہ جو کوڈ ہو گیا، اور اس کے کیا نکلیں گے، روٹ لیٹر کیا نکلیں گے؟ فجر، فا جیم را، جیم را، الحمدللہ، کیونکہ یہ جو ان تو ہمارا انقلبہ والا آ گیا، اور یہ جو تا تھی یہ مؤنث والی ہے، تو یہ ہمارے پاس بیچ میں سے ہمارا روٹ بھی نکل آیا، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب یہ جو انقلبہ جیسے افعال ہے اس کے بارے میں ہم نے سیکھا کہ یہ نتیجہ ہوتا ہے، جیسے ہم تدارس کریں گے، ہم تدبر کریں گے، نتیجے میں کیا حاصل ہوگا؟ انقلاب۔ اب یہاں پر جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مار اپنے عصا کو، تو اس میں ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہوگی کہ ضرب موسیٰ عصا کا، یعنی کہ عصا، عصا کا یعنی عصا، یعنی کہ موسیٰ نے اپنا عصا مارا، یہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہوگی، اس کو ہم سمجھیں گے کہ یہ یہاں پر ہے، اور جب انہوں نے اپنا عصا مارا تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا پانی پھوٹ پڑا۔ یہ فجر کی جو نماز کا ٹائم ہوتا ہے وہ بھی ہے نا کہ پھو پھٹتی ہے، تو اسی سے یہ فجر والا معنی یہ جو لیا جاتا ہے نا، تو پھوٹ پڑے من ہو اس سے، اچھا جی، من ہو اس سے، اسنتا عشرتا عینا، اسنتا عشرہ یہ گنتی ہے نا عربی کی، 12 12 عینن چشمے۔ اب یہ جو چشمے ہیں ہم اردو میں تو چشمے کو کہتے ہیں مذکر، یہ عربی میں مؤنث ہے، ٹھیک ہو گیا جی، عینن چشمے، تو پھوٹ پڑے اس میں سے 12 چشمے۔ آگے ہے قد،
तहकीक आलिमा कुल्लु उनासिम मशरबहुम। कद, कद हमने कहाँ पढ़ा था और क्या हमने सीखा था कद से? QC1 थोड़ा सा अपने यकीनन कोई बात तहकीक यकीनन और जो तहकीक हो चुकी होती है इसमें के बारे में। इसमें किसी किस्म का कोई शक शुबा नहीं रह गया। तहकीक मोहर लगा दी गई। तहकीक आलिमा वही वाला हमारा जाना पहचाना, यहाँ पर माना भी पहचान माना वाला लिया, यानी कि जान लिया। तहकीक पहचान लिया, कुल्लू हर एक, उनासिन, उनासिन नास की जमा है, ठीक हो गया। हमने कहा इंसान की जमा नास, अब नास की जमा यहाँ पर ये माना लिया जाएगा कि नास में लोग होते हैं और उनास में कबीले, लोगों के इकट्ठे जो ग्रुप्स कह लें, ठीक हो गया जी, वो होंगे उनास। मशरबहुम, अब ये जो मशरब है, मशरब, मशरब उसी तरह से जैसे हम कहते हैं मस्जिद कहते हैं ना, मस्जिद। अब ये जेर और जबर का फर्क क्यों है, ये भी हमने इंशाल्लाह QC4 में ही समझ लेना है। अब ये जो मशरब है ये जगह को कहते हैं। मस्जिद कौन सी जगह होती है? मस्जिद में हम क्या करते हैं? मस्जिद सजदा करने की जगह। और मशरब शारिबा यशरबू, मशरब कहते हैं पीने की जगह को। शरबत, ये इसी तरह से तो हम थोड़े थोड़े अल्फाज अपने बोलते हैं ना, उनसे हम इनको रिलेट करके समझा करेंगे। हम उन सब ने, यानी कि उन सब ने अपनी अपनी जो पीने की जगह थी, हर कौम ने, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में 12 कबीले थे। अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने हर एक के लिए अलग अलग चश्मा, जैसे पानी निकला वो छोड़ दिया, इनके सहरा था। ये भी एक बहुत बड़ा मूजजा था कि सहरा में इस तरह से पत्थर से पानी के चश्मे फूट पड़ना। अब ये यहाँ पर हमारे लिए भी एक पैगाम है कि अगर काम को तरतीब से किया जाए तो लड़ाई झगड़े और इस तरह की जो बदमज़गियाँ, इनसे बंदा बच सकता है। अल्लाह ताला ने बड़ी उनके लिए तरतीब और जैसे तंजीम के साथ हर काम को इस तरह से बनाया कि हर कौम ने, उनको पता चल गया कि जो जो कबीला था, हर कबीले को पता चल गया देखकर कि ये मेरे लिए है, दूसरे कबीले को पता चला कि ये वाला जो चश्मा है ये मेरे लिए है। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह से उनके लिए तो बेहतरीन ये नेमत अल्लाह ताला ने उतारी थी। अब उन्होंने इसके बाद फिर जो जो किया वो हम इंशाल्लाह आगे देखते चलते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर इसका हम टेबल इंशाल्लाह आगे करेंगे, तो अभी हम इस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे, जितनी की काफी है। ली कौमी ही 3 टुकड़े, कुलना 2 टुकड़े, इद्रिब पहले अमर, बी आसा और क़ा। आसा को हम उर्दू में भी समझते हैं ना, बी अलग है, आसा और क़ा। अल हज्र पत्थर, फन इसका फा अलग करे, इन फजरत, ठीक हो गया जी। मिनहू के 2 टुकड़े, इस नाता, ये पूरा कलिमा है। कलिमा कहते हैं एक पूरे वर्ड को जिसकी समझ आए, इसका कोई ना कोई माना निकला है। अशरता ये 10 के साथ मिला के, ठीक हो गया जी, 10 और 2। अच्छा जी, आइनन, आइनन कहते हैं चश्मे को, आइनन आंख को भी कहते हैं, आइनन चोर को भी कहते हैं, आइनन सोने को भी कहते हैं। इनका फर्क कैसे पता चलता है? इन सबकी जमा अलग अलग होती है, वो इंशाल्लाह जैसे जैसे अल्फाज आते जाएंगे हम समझते जाएंगे। कद क़ामत इस सलाह से हमें याद है कि कद जो है ये माजी के जो होते हैं ना सीगे, जैसे हम सौफा अन करीब जल्दी वाले में यूज करते हैं। कद यानी कि ये पीछे जमाने जो गुजर गए उसमें ये काम हो चुका है। कद आलिमा, आलिमा का टेबल हमने पूरा किया हुआ है। कुल, कुल हम वैसे भी कहते हैं ना, कुल कायनात, कुल जहान, हमें पता है कि तमाम वाला इसमें माना पाया जाता है। उनास की बात भी होगी। अब है मशरबा और हुम, यहाँ पे हम इसके 2 टुकड़े कर लेंगे। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? एक्सक्यूज मी, मैंने चेक करना है, आपने कहा है उनास का मतलब कौम और कबीले और नास लोग, लोगों का, लोगों के कबीले, ज्यादा लोग हों जिसमें। हमने कहा था ना इंसान से नास, हमने जमा पढ़ी भी है ना। जी जी। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, लोगों का रब, ठीक हो गया जी। अब उनास कहते हैं लोगों के जो ग्रुप्स होते हैं, एक कौम जो होती है उसको उनास कहते हैं, ठीक हो गया। तो मैम आईना आपने क्या बताया, मोहम्मद है? आइनन चश्मे, मोहन्नस। हाँ जी ये मोहन्नस है। आंख को भी बिल्कुल, ये आइन ऊपर कहते हैं ना, फम नूरुल फजरत, आइन। मैं समझी नहीं जी, फन बताइए। फजरत से भी पता चल रहा है ना, हाँ जी, फन मैंने फजर कहा से पता फन चला, फजरत से भी पता चल रहा है। ये आइनन है, ठीक हो गया जी। क्योंकि ये जमा नहीं है ना, जमा होती तो फिर हम दूसरा कायदा ले आते कि इसको सजा मिली है कि जमा मुकस्सर में भी अक्सर ये हो जाता है कि जमा मुकस्सर जहां पर आ जाए तो उसके साथ भी मुअन्नस का सीगा लगा दिया जाता है।
لیکن ہمیں اب یہاں پہ سیدھا سیدھا سا نظر آ رہا کوئی مؤنث اس وجہ سے نہیں آیا ہوا کہ آگے کوئی جمع آ گئی ہو. اور یہ اثنتا عشرہ یہ جو ہوتے ہیں نا 11 سے لے کے 19 تک ان کو اسی طرح سے واحد والا ہی یوز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے سسٹر یہ جو قد ہے اس کا مجھے یہ تو قد. سمجھ گئی اس کا میننگ، لیکن جب یہ تحقیق استعمال کرتے ہیں نا وہ فلو میں ٹھیک نہیں آتا، تو وہ یقیناً یا کچھ اور کیوں نہیں یقیناً استعمال آپ کرتے؟ یقیناً لکھ لیجیے یقیناً پہچان لیا. تحقیق یہ مجھے بھی ایسے لگتا تھا کہ تحقیق سے کیسے پتا چلے گا، لیکن آپ اس کو اس طرح سے لے لیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب دیکھیں قد قامت الصلاۃ، نماز کھڑی ہوگی بس، اب اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب نہ تو یہ دوبارہ جیسے اب ایک جو مسجد ہے اس میں آپ سمجھ لیں ابھی جیسے عصر کی اذان ہو گئی ہے، اب عصر کی اذان کے لیے جب اقامت کہہ دی گئی تو آپ جتنے نمازی مسجد کے اندر ہیں انہوں نے اسی وقت کی ادا نماز جماعت کے ساتھ ادا اسی ٹائم ہی پڑھنی. قد اب یہ اس پہ تحقیق ہو گئی. ٹھیک ہو گیا، اس میں اب کسی قسم کے کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں رہ گئی. یہ ماضی کے لیے یوز ہوتا ہے. آپ اس کو جی البتہ ٹھیک. کہہ لیں. آپ البتہ ویسے جب لا عدت لقد البتہ تحقیق وہ تب لے لیا جاتا ہے. آپ اس کو اسی طرح سے لے لیں انڈیڈ. ٹھیک ہے اس کو اس طرح سے انڈیڈ، ہاں انڈیڈ مجھے یس. ہاں ٹھیک ہو گیا. چلیے جی اس کو ہم نے دیکھ لیا. اچھا جی فنفجرت منہ، پہلے ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ. اب یہ جو ہے نا اِذِ زا کی زیر کے ساتھ ہم نے جب سین ملایا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو حمزہ تھا حمزۃ الوصل تھا، یہ قطع نہیں تھا، یعنی کہ اس کو ملا کے گرایا جا سکتا ہے. ملانے کے لیے ہم اگلے لفظ سے ملاتے ہیں تو اس حمزہ کو کٹ کر دیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نرم مزاجی کو دیکھیے کہ جب وہ بنی اسرائیل کے ساتھ ایسے صحرا میں تھے جہاں پانی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی ضرورت کو محسوس کر لیا اور اللہ تعالیٰ سے پانی کے لیے درخواست کی. کہاں وہ پانی کو عبور کر کے آئے تھے نا، وہ پورے سمندر سے اللہ تعالیٰ نے ان کا نکالا تھا. اور اب آگے دیکھیے صحرا میں اور پانی نہیں ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی. آگے ہے فن فجرت منہ، یہ ایک اور معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو دیا گیا تھا. ایسا ریگستان جہاں دور دور تک پانی کا کوئی تصور نہیں تھا، اور وہاں حیرت انگیز طور پر اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہوا، انعام ہوا کہ پانی کے چشمے ابلنے لگے اور پتھر سے. کیونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو 12 چشمے عطا کر دیے کہ اس میں بھی آگے ان کی کوئی لڑائی کوئی جنگ نہ شروع ہوا. آج کے دور میں ہمارے لیے کون سی چیز ہم کہتے ہیں کہ یہ معجزہ ہے؟ امت محمدیہ کے لیے کون سا معجزہ ہے؟ تھوڑا سا سوچیے. قرآن. قرآن مجید. قرآن. ایسا معجزہ قیامت تک نہ اس میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے نہ آئے گی. یہ ہمارے لیے معجزہ ہے الحمدللہ. قد علم کل اناس مشربہم، جب ہر گروہ کے لیے ایک خاص حصہ ہو اور وہ اسے جانتا بھی ہو تو اختلافات اور جھگڑوں کے امکانات بہت کم ہو جایا کرتے ہیں. صحیح علم اور درست انتظام سے کام بہتر طریقے سے انجام پاتے ہیں. آئے ہم سب بھی نیت کرتے ہیں کہ ہم قرآن سیکھیں گے، سکھائیں گے اور مسلمانوں کے درمیان پھیلے اختلافات کو، تنازعات کو کم کرنے کی کوشش کریں گے. اپنا حصہ ہم ڈالیں گے. ظاہر سی بات ہے کہ جب سب سے پہلے جب آپ قرآن کی جو کلاسز وغیرہ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو اسی پہ ہی کافی آپ لوگوں کو بھی ہوا ہوگا تجربہ کے سننا پڑتا ہے. تو خیر یہ اپنا ارادہ مضبوط رکھیے کہ سیکھنا ہے تو سیکھنا ہی ہے، سکھانا بھی ہے انشاءاللہ، کیونکہ یہ ہم پہ فرض ہے. اچھا جی ان کوسچنس کو ہم چھوڑ کیونکہ یہ آپ کافی ساری پریکٹس کر لیتے ہیں. اچھا جی کلو تم کھاؤ، کلو کل سے کلو تم کھاؤ، وشربو اور تم پیو، من سے رزق. اچھا جی تم کھاؤ اور پیو رزق سے اللہ، یعنی کہ رزق اللہ پورا اس طرح سے بن جائے گا رزق اللہ، اللہ کے رزق سے، والا اور نہ تعسو. تعسو جو ہے نا آسیہ یاسا، آسیہ یاسا کون سا یہ پیٹرن کچھ آ رہا ہے تھوڑا سا ذہن میں؟ آسیہ آئین سایا لکھتی ہے شاید، پھر آپ کو زیادہ جلد پکڑ لیں گے آپ. رادیہ. رادیہ. رادیہ الحمدللہ، یہ میری جینیس کلاس ہے الحمدللہ. آسیہ یاسا
इसका हम क्या बनाएंगे जमा? पेश लगेगी या हमारी लगेगी जबर? पेश हो गया। और या सा, इधर जबर लगेगी। या सौना। हमने इस तरह के टेबल करने हैं ना, इसलिए ये थोड़ी सी प्रैक्टिस हमारी साथ ही होगी। ठीक हो गया जी। इसका माना भी होता है फसाद फैलाना। ठीक है, फिल अर्दी मुफसिदीन, जमीन में फसाद मचाते। मुफसिदीन भी आपको पता है, मुफसिदीन कहाँ से आया होगा? फसदा, फसदा। अच्छा जी, और ये उसका फसादा। फाइल है, मुफ्सिदीन। अच्छा जी, फसादा। और अगर मैं कहूँ कि ये इसकी जो आवाज है वो जा रही है मुस्लिमीना से, अब आपको क्या लग रहा है ये कहाँ से आया होगा? मुस्लिमीना अफसदा, अफसदा। अफसदा। अल्हम्दुलिल्लाह, अफसदा। अफसदा युफसिदु। ठीक है, इसी में से बना था मुफसिदिन, मुफसिदिन, मुफसिदन, मुफसिदन, तीनों होते हैं ना। अब ये या नून वाली क्यों बनी? क्योंकि या तो इसके ऊपर दो जबर होंगे या दो जेर होंगे, इनकी जो बन जाती है ना जमा, ये या नून वाली बन जाती है। अब यहाँ पर हमारे साथ साथ वो वाले टेबल अप्लाई होते जा रहे हैं जो हम करके आए हैं। ठीक हो गया जी, मजीद। ठीक है, अब ये सारी जैसे हमारी QC1 वाले वो कौन से रिपीट हो रहे? सेहतमंद। अब कुलू को देखा हमने, कुलू कौन सा रिपीट हो गया? ये QC2 हमारा रिपीट हो गया। और आगे मुफसिदीना जो हमने अभी ताजा ताजा मजीद ही QC3 का किया, अब ये साथ साथ अप्लाई होना शुरू हो गए। ठीक हो गया जी। और यहाँ पर ये जो तासु का मतलब भी फसाद फैलाना होता है, मुफसिदीन का भी इसका मतलब ये है कि जब एक बात दो दफा दोहराई जाए, इसका ये मतलब है कि ताकीद पैदा करने के लिए ये बात की गई है। ठीक हो गया जी, कि तुम खाओ और पियो रिज्क से अल्लाह के, और ना फिरो जमीन में फसाद मचाते। जी सिस्टर कोमल, आपका कोई क्वेश्चन है? सिस्टर कोमल का हैंड रेस है। चलें जी, अगर क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे चले जाते हैं। ये हम सारा देख चुके अल्हम्दुलिल्लाह। कुलू वशरबू, इस्लाम जिंदगी से लुत्फ अंदोज होने से नहीं रोका, यानी कि आप पार्टी करें, आप इंजॉय करें, लेकिन शर्त क्या है कि इंसान हद से तजावुज ना करे। तजावजा या तजावज, ये कौन सा बन गया? तदारसा या तदारसु। ठीक है, और बिगाड़ फैलाने का सबब ना बने। एक हदीस लेते हैं, हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह बंदे से राजी होता है जब भी वो खाना खाकर उसका शुक्र करे या पानी पीकर उसका शुक्र अदा करे। आप लोगों के पास अगर बुक है तो मुझे बताइएगा, इसकी अरबिक लिखी हुई है? जी सिस्टर, लिखी हुई है। अच्छा जी, याकुलुल अकला। अच्छा, याकुलु हमें पता ही है, ये हमारा जो टेबल है, अकला याकुलु। ठीक है जी, अकला इनके खाए, जो कुछ भी खाए। यहमदु, हामिदा यहमदु, ये भी हमारा किया हुआ है। यशरब, ये आज हमने टेबल कर लेना, शारिबा यशरबु। ठीक हो गया जी, शरबत, ये उसका वो आ जाएगा, मस्तर आ जाएगा। ठीक है, बाकी इसके सारे अलैहा हमारा जाना पहचाना है, खूब जमीर है, ये सारी चीजें हमारी जानी पहचानी की। तो अगर इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इसको आप ना साथ साथ मिला लिया करें अरबी को उर्दू के साथ। कोई मुश्किल आए तो ग्रुप में यकीनन बात हो सकती है इस पे, या आप पर्सनल पे मुझे या हफ्सा से भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। कुलू वशरबू, इस्लाम जिंदगी से, ये हमने ठीक है पढ़ लिया ये सारा, कि नहीं रोकता। अच्छा जी, अब देखें कि एक और जो हमारे पास मौजूदा है अल्लाह ताला का, वो क्या है? जमजम का चश्मा। जमजम का चश्मा भी एक खुश्क बंजर जमीन से फूट पड़ा जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपने पर को जमीन पर मारा। ये मौजूदा आज भी बाकी है और हर साल लाखों लोग इस पानी को पीते, और देखिए पानी खत्म नहीं होगा कभी भी,
अच्छा जी, ये जो किसने एड़ी मारी थी, क्या नाम था उनका? हजरत इस्माइल हजरत अलैहिस्सलाम। इस्माइल। ये जो हज जो है ना, जितने भी सारे शायर हैं, ये हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों की ये जो सारी इबादत अल्लाह ताला को जो इनकी मुशक्कत पसंद आई थी, कि वो कैसे अपनी बीवी को छोड़ के आए थे जंगल में, सहरा में, ना पानी था वहां पे, ना खाने को कोई चीज, और ये वो सारी जो चीजें थी, जब हम हज पे जाते हैं या उम्रा वगैरह करते हैं, वो देखते हैं ना, तो वो सारी चीजें जहन में आती हैं कि कोई भी आपको अगर चीज चाहिए तो उसके लिए अपना आराम, अपना चैन, सुकून, जाहिर सी बात है आपको कहते हैं ना कि बिन रोए तो बच्चे को माँ दूध भी नहीं देती है, तो सोया चलो सोया ही रहे, तो थोड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी। अल्लाह ताला ने हमें पानी, खुराक और हर किस्म का रिज्क अता फरमाया। उसी ने हमें बस्तियों और शहरों में आबाद किया। आइए अल्लाह ताला की इन तमाम नियमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, और जब हम शुक्र अदा करते हैं, नियमतों को अपने जहन में ला के सोच के, तो दिल मोहब्बत से भर जाता है। ठीक हो गया जी। बात अगर मौजज़ात की हो तो कुरान मजीद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास क़यामत तक बाकी रहने वाला मौजज़ा है। अच्छा जी, यहाँ पर वशरबू के हम 2 टुकड़े कर लेंगे, बाकी सारे सिंगल अल्फाज है, इस तरह से कोई किसी भी किस्म की दुश्वारी नहीं है। अच्छा जी, तर्जुमा एक्सक्यूज रवा। मी, एक मेरा क्वेश्चन है कि ये जो 12 चश्मे ये भी हैं अभी तक? अच्छा जी, इसमें ना जब आप तफासिर में जाएं, वहां पे इनके कोई नाम भी बताए गए हैं। ये मैंने थोड़ा सा सर्च किया था, नाम भी इनके थे, और वहां पे लिखा हुआ था कि शायद ये वही उसी जगह के बारे में। अब जैसे जो है ना कोहे तूर, जहाँ पर वो जो आग वगैरह लगी थी, वो सारा मतलब लोग देख के आते हैं, वहां से वो ब्लैक हुआ हुआ है, वो लोगों को एक समझ में आता है कि ये है। अब ये जो दरिया जो पार किया था, बाहर जो समंदर पार किया था, इसमें भी मुख्तलिफ आ रहा है, और ये जो 12 चश्मे, इसमें भी लिखा हुआ है कि हो सकता है कि ये वाली जगह हो जहां पर ये 12 चश्मे फूट पड़े थे। अच्छा, सही। और जब पानी जज़ाकल्लाह। मांगा मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए, तो हमने कहा मारो अपने असा को पत्थर पर, तो फूट पड़े उससे 12 चश्मे। तहकीक पहचान लिया हर कौम ने अपना अपना घाट। तुम खाओ और पियो अल्लाह की रिज्क से, और ना फिरो जमीन में फसाद मचाते। यहाँ तक हमारी पानी की दुआ है ना। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, उसमें देखिएगा वो जो हम एक बार बार इशारा पढ़ते हैं ना, सजा के, यानी ये सारी जो नेमतें थी, इन पर भी इनका शुक्र नहीं हुआ, बल्कि इन्होंने आगे कोई नाफरमानी ही की है। अच्छा जी, हमारी दुआ क्या होनी चाहिए इन आयात को पढ़कर? कि अल्लाह हमारी मदद फरमा कि हम तेरी निशानियों और मोजज़ात पर गौर करें, ताकि हमारे ईमान में इजाफा हो। प्लान क्या करेंगे हम? इंशाअल्लाह मैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करूंगी, और पूरा करने के लिए तमाम तर कुव्वतों और सलाहियतों का इस्तेमाल करूंगी, और लोगों की खिदमत भी करूंगी इंशाअल्लाह। अस्मा और अफ़ाल देख लेते हैं। आइनुन, उयूनुन। जब उयूनुन वाली जमा होगी तो हम कहेंगे ये चश्मे वाली बात है, कि यहाँ पर चश्मे वाला तर्जुमा दिया गया है। और वो जो आंख वाली थी वो आयानुन, वो इस तरह से जमा आ जाती है। अब मशरब, मशारिब, मस्जिद से मसाजिद, मशरिक से मशारिक, मगरिब से मगारिब, ये वो अल्फाज हैं जो कुरान मजीद में यूज किए हुए हैं। अच्छा, मस्कन से मसाकिन, ये जो जमा है ये एक पूरा वजन है। इस वजन को इंशाल्लाह हम अगले कोर्स में डिटेल से पढ़ लेंगे। अच्छा जी, अब बात करते हैं जो इसी आयत मुबारका में सेहतमंद अफ़ाल यूज हुए। सेहतमंद अफ़ाल कौन से हैं? फतह, नफरा, दौराबा, सानिया। तो पहला ही फेर जो दौराबा का है, बहुत हमने किया, आलिमा भी काफी किया। हम शारिबा से शुरू कर लेते हैं। शारिबा, यशरबु, इशरब, शारिब, मशरूब, और इसका जो मसदर होगा शुर्ब या शिर्ब, दोनों चीजों में इस तरह से यूज हो जाएगा। अच्छा, जिसके बाद है रज़ाका, यरज़ुकु, उर्ज़ुक, राज़िक, मरज़ूक और रिज़्क। ये बाब नून से है पेश, और माजी में जो पहले सीगे के नीचे जेर है, ये उनसे हमें पता चल जाता है कि ये कौन कौन से अफ़आल हैं। अच्छा जी, कमजोर की बात कर लेते हैं। हमजा वाले, कमजोर और यकसां, ये सारे एक ही कैटेगरी में डाल दिए गए हैं। ठीक हो गया जी। इसमें है अकला, यकुलु, कुल, आकिल, मकूल और अक। इसके बाद है आसिया, यसा, यसा, आसिन, डैश, आसियान और उसीयुन। ठीक है जी, 2 मसादिर हैं। मसादिर एक से ज्यादा हो सकते हैं। ये रौदिया यरदा की तरह रौदिया कोड है, और अगर मेन पर जाएं तो ये बाब सीन पर जाएंगे। अस्लमा से है अफसदा।
अफसदा युफ्सिदु, अफसिद, मुफसिद, मुफसद और इफसाद, और फसदा भी होता है, वो होता है फसदा यफसुदु, उफसुद, उसके बाद फासिदुन, मफसूदुन और फसादुन। ठीक हो गया जी। ये इस तरह से थोड़ी थोड़ी सी तब्दीली आ जाती है, जो हमारे वजन होते हैं वो उन पे पूरे आ जाते हैं। जी सिस्टर कोमल का हैंड रेज है। अब मुझे ना वो जेर और जबर की समझ नहीं आ रही थी, उसकी कंफ्यूजन थी, तो वो काइंडली आप प्लीज बता दीजिएगा जिस वक्त अमर आपको में, टाइम मिला इस lesson। अमर में वो जो मजीद फी के वो करते हैं ना स्टार्ट वाले, जैसे है शुरू में आपने बताया था असिया, उसका असू असू, वो आज हमने जो ये मुझे टेबल समझ करना, नहीं आ अब रही। हमारे जो टेबल है ना कमजोर वाले, उनमें से बहुत सारे टेबल ये हदा के पैटर्न पर ही आ जाने हैं। उनको हम इंशाल्लाह साथ साथ समझते जाएंगे। ठीक हो गया जी। उसमें आप जेर जबर नहीं कहेंगे, उसमें सिर्फ जबर और पेश दो ही चीजें, यानी उसमें जेर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक हो गया जी। जमा में ये हमारे पास, ये देखें, ये जो आयानुन है ना, आयानुन, ये जमा है आंख वाली की। ये पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम बी खोलते हैं और इसमें कोशिश करते हैं कि आज ही ये कंफ्यूजन दूर हो जाए। ना हो तो कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह हम इसको इतना ज्यादा करते जाएंगे, बार बार प्रैक्टिस, कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। एक दिन में हमें भी समझ नहीं आई, एक दिन में कुछ भी आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और जितना हम देखते जाएंगे तो समझते जाएंगे ना, ये आसान होता जाएगा। रट्टे तो हमने लगाने नहीं है, तो इसको कैसे समझना, हम लिख के, बोल के, प्रैक्टिस करके, आप ग्रुप में सुनाया भी करें। सुनाने से ये होता है कि चले देखिए, अगर आप भेज रहे हैं, आपने 10 टेबल भेज दिए, कोई भी, कोई ना कोई एक बंदा तो सुन ही लेगा ना। अगर एडमिन ने नहीं सुना, टीचर ने नहीं सुना, आपस में स्टूडेंट भी सुनते हैं ना, इसका फायदा ये हो जाता है कि आपका अगर एक टेबल में कोई गलती किसी को पता चली है, उसने उसको बताया, तो बाकियों का भी वो ठीक हो जाता है। और जो जो बार बार हम पढ़ते हैं, प्रैक्टिस रवानी आती है, इससे हमें एक पैटर्न याद हो गया, उसके ऊपर जितने भी अफाल आने वो हमें उसी तरह से समझ आ जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, हमारे बाब हैं मजीद फीही के। हमने पहला बाब मजीद फीही वाला कौन सा किया था, मुझे बताइएगा जरा। पहला बाब अल्लामा, अल्लामा, और इसका हम बाब का नाम क्या लेते हैं? आइन, अच्छा वो तालीम, बाबे तालीम, बाबे तफईल, तालीम, तफील, बाबे तफील, तफईल। तफील, अब ये जो हमारा टेबल है ना वल्ला, इसको भी हमने लेके जाना है बाबे तफईल पर। पहले हम इसको ही खोल खोल के देख लेते हैं ये है क्या, कि इसको हम अल्लामा पे ही क्यों लेके जा रहे हैं। ये हमारा है अल्लामा और ये है हमारा वल्ला। अब हम इसको भी खोल लें, अगर वाओ, लाम और या, अगर हमारे पास या के ऊपर जबर होती तो फिर ये क्या बन जाता? वल्लया, वल्ला या, अल्लामा वल्ला या। अब आपको इसका साउंड मिलता जुलता लग रहा है? अल्लामा हाँ जी। वल्ला या। अब या चूंकि कमजोर है, चटानी ना आपकी आवाज शायद ब्रेक हो रही है आई थिंक। अच्छा जी, अब दोबारा से आपकी से स्टार्ट। सबको मेरी आवाज ऐसे टूटी फूटी आ रही है, मुकस्सर आवाज आ रही है मेरी? नहीं ठीक आ रही है, नहीं तो ठीक आ रही है। अच्छा जी, चले ठीक हो गया। सिस्टर अफ्सा अपने एंड पे चेक कीजिएगा। जब भी ज्यादा स्पीकर ऑन होते हैं तो फिर इंटरफेरेंस होती है, हाँ, जो अब अननेसेसरी है अगर बंद करें। जी, अब ये हमारे पास है, अगर हम इसको वल्ला या करें तो हमने हदा वाले टेबल में जो तब्दीलियां देखी थी वही तब्दीलियां हम यहाँ देखेंगे। हदा में ये था कि हमारे पास कोई भी माजी में किसी भी हमने अर्फ को डबल नहीं किया था। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने जैसे किया था ऐन लाम लाम मीम, मिलाया, मिला के तशदीद दी और हमने पढ़ लिया अल्लामा। अब हम पढ़ेंगे वल्ला या को, क्या पढ़ेंगे, हमने क्या करना है, ये जो जबर है ये कमजोर हर्फ ने कबूल नहीं की। अब ये हरकत समझ लें कि ये पीछे चलेगी। अब इसका क्या बन गया, वल्ला।
اب वल्ला चूंकि हदा से वैसे तो नहीं इसका साउंड मिल रहा, लेकिन क्या चीज इन दोनों में एक जैसी है, इन दोनों में आखिरी जो हमारा रूट लेटर है वो है कमजोर, ये दिखेगा। ठीक है, हदा में भी यही हुआ था ना, हा दाल और या। अब हदा के टेबल को सामने देखने की क्या वजह है, इसको अभी हम देख लेते हैं। डिटेल को आज छोड़ देते, ठीक है, मैं बहुत दफा अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया। अच्छा जी, ये हमारा पहला टेबल है, अल्लामा से वल्ला। वल्ला का माना होता है उसने फेरा। अब ये जो बीच में हमारे पास जैसे अल्लामा की लाम थी, वल्ला की भी लाम है, माजी में ये एक लाम ज्यादा है, तशदीद ज्यादा है, इस तशदीद को हमने थ्रू आउट लेकर जाना है जहां तक ये तशदीद चलेगी। अच्छा जी, अब हदा को देखिए, हदा हदऊ, हदैता हदैतु हदैतुम हदैना हदत। अब वल्ला में भी हम यूं ही करेंगे, वल्ला वल्लऊ वल्लैता वल्लैतु वल्लैतुम वल्लैना, और मुअन्नस क्या बनेगी, हदत वल्लत। तो क्या लाम को 2 मरतबा पढ़ना है, वल्लत, वल्ला उसने फेरा, वल्लऊ उन सब ने फेरा, वल्लैता आपने फेरा, वल्लैतु मैंने फेरा, वल्लैतुम आप सब ने फेरा, वल्लैना हम सब ने फेरा, वल्लत वो औरत फेरती है। अब हदा का टेबल अगर आपके जहन में होगा तो आपको वल्ला के टेबल में ये याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि यहाँ पर हमने वल्लू तो नहीं कर देना। ठीक है, अब जब हमें पता है कि हदा से हदऊ है तो वल्ला से वल्लऊ ही हम करेंगे। ये अंडरस्टूड सी बात है कि जब हमें एक याद आ गया, एक टेबल हमारा पक्का है और दूसरा टेबल उसी सारे पैटर्न पर आ रहा, उसी, चलिए पैटर्न भी हम नहीं कहते, पैटर्न में फिर बात चेंज हो जाती है, उसी के मिसल हो जाता है, उसी से मुमासलत रख रहे हैं, उसी तरह से जो आखिरी हर्फ था वो आ रहा था। सेम साउंड आ रही है ना? जी हाँ जी, अब देखिए वल्ला, अब वल्ला से वल्लू नहीं करना, ये आप इसको इतना अच्छा पक्का याद कर ले कि हदा हदऊ वल्ला वल्लऊ। अब इस पैटर्न पर जितने भी टेबल आने, वल्ला जैसे आज हम, जैसे हमारा दूसरा टेबल होगा नज्जा, और इस तरह के जितने भी अल्फाज आएंगे हमने उसकी जमा में जबर ही लगानी है। तो इसको हम दोबारा से करते हैं, वल्ला वल्लऊ वल्लैता वल्लैतु वल्लैतुम वल्लैना वल्लत। ठीक हो गया जी, एंड पे हम आप लोगों से करवाएंगे टेबल, अभी हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अच्छा जी, ये उसी तरह से हदा हदऊ जजा जजाऊ वल्ला वल्लऊ, और एक सिस्टर ने कहा था दआ, दआ में भी आखिरी हर्फ क्योंकि एंड पे है ना, तो उसमें भी यही ऐसे ही हो जाता है, दआ दआऊ। इस तरह से तला तलऊ जजा जजाऊ, और इसमें हमने जैसे सिस्टर अफना ने बताया कि हदा से हादिन बनता है, दआ से दाइन बन जाता है। ये इसमें या और अलिफ का फर्क है, लेकिन ये कि चूंकि आखिरी जो हर्फ है हमारा ये है कमजोर, तो कमजोर में ये हमें एक फायदा हो जाता है कि ये कमजोर वाले जो टेबल है इनका इस्मुल फाइल जो है वो बना था हादिन। ठीक है, दाइन, और आज से जो हमारा मजीद भी है इसमें भी थोड़ी सी हम ऐसी तब्दीली देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पर हमने माजी की चाबी, चाबी कौन सी है, जो पहला सीगा होगा उसने वाला, ये हमारी चाबी है, बाकी जो है ये खजाना है। ठीक हो गया, क्योंकि हम ये सीख चुके हैं, वाओ अलिफ ता तू तुम ना, और ये ता के ऊपर जज़म, इनसे हमारे सीगे कंप्लीट हो जाते हैं। अच्छा जी, अब आप सब अनम्यूट करिए खुद को, बताइएगा हल वल्ला। नाम वल्ला। माशाल्लाह से 27 लोग हैं, मैं और हफ्सा के अलावा 27 लोग हैं, तो 27 नहीं तो 25 आवाजें तो आए। हल वल्लऊ, नाम वल्ला हल वल्लैता, नाम वल्लैतु हल वल्लैतुम, नाम नाम वल्लैना। क्या उसने फेरा, जी हाँ उसने फेरा, वही शुरू से हमारा QC1 का पहला टेबल, पहला पैटर्न, हुआ का जवाब हुआ से, हुम का जवाब हुम से,
किसी तरह से अंता का जवाब अना से, अंतुम का जवाब नहनु से, ये सारा उसी तरह से चलता जाएगा। और अगर मैं कहूँ हल वल्लत तो क्या आंसर करेंगे? नाम वल्लत। नाम वल्लत। नाम वल्लत, क्योंकि हुआ का जवाब हुआ से, हिया का जवाब हिया से। थोड़ी थोड़ी मुअन्नस की प्रैक्टिस, थोड़ी थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, करते रहेंगे साथ साथ, ताकि जब हम मुअन्नस वाले सीखे करें तो हमें वो ऐसे ना लगे कि जैसे हमने कहीं पढ़े ही नहीं थे, हमें इसका बिल्कुल अंदाजा ही ना हो। पढ़े हुए होते हैं, हम थोड़ा थोड़ा सब भूल जाते हैं, इंसान है ना, तो नसिया यंसा, भूलने वाला है। अच्छा, जिसके बाद है यहदी, यहदी यहदूना, ये इसकी तरफ इशारा है कि जैसे हमने कहा था यहदी से यहदूना, ये हो गई जमा की बात। पहले हम युवल्ली को खोलते हैं। सिस्टर आसिया या सिस्टर मनीजे करना चाहेंगी इसको? करना जी ये है, मैं बताती हूँ क्या करना है। हमने युअल्ली मुंह पे इसको पूरा पूरा फिक्स करना है। या की जगह पर या आ गई, आइन की जगह पर हमारा वाव आ गया, लाम उसी तरह आ गया। अब अगर मैं कहूं कि आप इस ये जो या है इस पे पेश पढ़ लें, तो आप पढ़िएगा जरा। युवल्लियु, युवल्लियु, युअल्लिमु, युवल्लियु, आवाज में एच हो गई, जी बिल्कुल। हाँ जी। पूरे पूरा पूरा साउंड आ गया। जैसे हम कहें अल्लामा बल्ला या चूंकि कमजोर है, उसने हरकत कबूल नहीं की, कमजोर था, बीमार था, उसने जैसे समझ ले सर पे वजन उठाया तो उससे उठाया ही नहीं गया, उसने छोड़ दिया, उसने कहा कि नहीं, मैं ये मेरे बस की बात नहीं है। अब हमने उसको, मरीज को छोड़ा नहीं है, उसको साथ लेके जा रहे हैं, लेकिन उस पे कोई हमने वजन नहीं डालना। वही काम हमने मुदारे में करना है। ठीक है, ये एक और बीमार है बेचारा। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, इसमें ये जो पेश थी ना, जो मीम के ऊपर हमारी पेश की हरकत थी, इसको गिरा के हमने साकिन कर दिया। अब ये क्या बन गया? युवल्ली। ठीक हो गया जी। अब युवल्ली, इसका वो जो पैटर्न तो यहदी नहीं है, लेकिन ये कि हमें ये पता चल रहा है कि यहदी में भी कमजोर हर्फ आया था, और या जो थी वो साकिन हो गई थी, और जो जेर थी वो दाल के नीचे, यानी कि जो उसका आइन कलमा था, फा आइन लाम, जो आइन कलमा था, दरमियान वाला हर्फ था, उसने जेर ले ली थी। अब जेर की सूरत में हमने जमा को पेश दे दी। ठीक हो गया जी। युवल्ली वो फिरता है या फिरेगा, युवल्लूना वो सब फिरते हैं, तुवल्ली आप फिरते हैं, फेरते हैं, सॉरी, फिरते हैं नहीं, आप फेरते हैं। फिरना वो एक और टेबल आएगा। उवल्ली मैं फेरता हूँ, तुवल्लूना आप सब फेरते हैं, नुवल्ली हम सब फेरते हैं। ठीक हो गया जी। युवल्ली युवल्लूना, तुवल्ली उवल्ली तुवल्लूना, नुवल्ली हिया तुवल्ली, युवल्ली युवल्लूना, तुवल्ली उवल्ली, दो हो गए। इसके बाद तुवल्लूना नुवल्ली, इसके बाद हिया तुवल्ली। अगर यहाँ अभी भी कुछ कंफ्यूजन है ना, तो अभी इसको क्लियर करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट हो, कोई आपको इसमें उलझन हो, समझ ना आई हो, तो इसको अभी हम क्लियर कर सकते हैं। अब हमने जितने भी कमजोर बनाने हैं, पहले हमने उसको पूरा पूरा उतार के देखना है सेहतमंद पे। यो अल्लिमु क्यों सेहतमंद है? क्योंकि इसके रूट लेटर आइन लाम मीम सेहतमंद है। वल्ला क्यों कमजोर है? वाओ लाम या, इसमें एक भी नहीं, इसमें दो कमजोर हर्फ हैं। ठीक हो गया जी। अब कमजोर जो है इसमें तब्दीलियां तो आएंगी। ठीक हो गया। अभी हम शुरू वाले वाह को नहीं देख रहे, क्योंकि हमने वाहबा में भी देखा था, वाह से कोई उसमें शुरू की तब्दीली तो आई नहीं थी। हाँ, जहां पर हमारे पास हदा आ गया था, यहाँ पर हमारे पास दआ आ गया था, वहां तब्दीली आई थी। एक सिस्टर ने बात की थी कि दरमियान में वो था ज्यादा। अब ज्यादा में भी देखिए, ज्यादा से यजीदू बन गया था, यदरीबू, कोई उसमें तब्दीली नहीं आई थी। तब्दीली वहां आती है जब हमारे पास आखिरी हर्फ कमजोर हो, क्योंकि उस पे हरकत पढ़नी थोड़ी मुश्किल होती है। बाज सूरतों में हरकत आ भी जाएगी, लेकिन उसकी कोई ना कोई वजूहात होती है, फिर उसकी वजह से बाकी सारे रूल चेंज हो जाते हैं। ठीक हो गया जी। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा,
अच्छा जी, ये फिर बता दिया गया कि जैसे यहदी यहदूना, यजदी यजदूना, युवल्ली युवल्लूना, हल युवल्ली, नाम नाम युवल नाम युवल्ली, नाम युवल्ली, हल युवल्लूना, नाम युवल्लून, युवल्लूना, युवल्लून, हल तुवल्ली। नाम नाम युवल्ली। युवल्ली, अच्छा जी, आप भी ना इसको नरमी से उवल्ली ऐसे नहीं पढ़ना, लाम दो दफा, हम दो दफा ही पढ़ेंगे। हल तुवल्लूना, नाम नाम युवल्ली, नाम युवल्ली, नुवल्ली। ठीक हो गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बताया गया कि हम सब किबला की तरफ मुंह फेरते हैं, तो इसलिए जो फेरने वाला आप इसको इस तरह से याद कर लें कि हमने काबा की तरफ मुंह फेरा, तो ये वही युवल्ली फेरना वो वाला मतलब है इसका। अच्छा जी, अब यहाँ पर आ गया है फेले अमर। अल्लामा, अल्लामा से क्या बना था? अल्लिम, साथियों अल्लिम, अल्लिम। और अगर ये भी ऐसा ही होता, वाओ लाम और इसके साथ मीम होता, तो ये क्या बन जाता? अब चूंकि इसके पास है ही नहीं है, ठीक है, इसके पास कमजोर था, कमजोर गिर गया। अब ये जो था वल्ली, अब इसको लिखने की भी जरूरत नहीं रह गई, अब ये बन गया है वल्ली। ये पूरा हमारा पढ़ा भी जा रहा है, समझा भी जा रहा है, तो ये हमारा फेले अमर आ गया वल्ली। ठीक हो गया जी, कोई ज्यादा तब्दीली नहीं की, हमने मुदारे की या गिराई, कमजोर हर्फ गिराया, हमारे पास वल्ली पूरा एक अमर मौजूद है। जैसे हमने कहा था कुल, या कुल से हमने कुल कर दिया था, जैसे हमने काना से कुन कर दिया था, हमें उसमें ना तो कोई हमजा लगाने की जरूरत पड़ी थी, ना कोई पेश लगाने की, कुछ भी नहीं करना पड़ा, सिर्फ मुदारे की अलामत गिरा दी, आखिरी हर्फ को साकिन कर दिया। यहाँ पर साकिन जब हुआ, वो पहले ही साकिन था बेचारा, अब जो साकिन को दोबारा क्या साकिन किया, उसको गिरा ही दिया। ठीक हो गया। अब हमारे पास आ गया है वल्ली, और अगर मैं आपसे पूछूं वल्ली, इसकी जमा क्या बनेगी? वल्लू, वल्लू। ठीक हो गया जी, शेर इसमें पेश आया वल्लू। हाँ वल्लू, ठीक हो गया जी। और ये यहाँ पर है भी है, इहदी इहदू, इजजी इजजू। जब आपने अपने जहन में लाना है ना, ये इतने ज्यादा हम पढ़ते जाएंगे, फिर हम जब आते हैं ना फ्लैशबैक पे, फिर याद भूल जाता है कि हमने इसका जो अमर था उस पर जबर पड़ी थी या पेश पड़ी थी। हम क्या करेंगे, हम हदा वाले टेबल को जल्दी से क्विकली रिवाइज करेंगे, इहदी इहदू। ठीक हो गया, उसे हमें याद आ जाएगा वल्ली वल्लू। तो ये वल्लू और वल्लू, ये वाली पहचान हमने, ये अब जब देखें एक जरा सी पेश है और एक जबर, बाकी देखें लफ्ज बनावट वही है, वो भी माजी में भी जमा है, यहाँ भी जमा है। वहां पे वल्लू में क्या है, हुम, और वल्लू में क्या है, अंतुम। यहाँ पर माजी है, यहाँ पर अमर है, तो ये माना चेंज होते हैं, इसलिए इसको बड़ी बारीकी से हमने याद रखना है। ठीक हो गया जी, जब हम कुरान पाक में पढ़े देखें, हमें पता चले कि ये जो पेश वाला है ये अंतुम वाला है, और जो जबर वाला है वो जमा का सीगा है, माजी वाला। वल्ली फेर, वल्लू फेरो, ला तू वल्ली मत फेर, ला तू वल्लू मत फेरो। अच्छा जी, अगर वल्ली से याद नहीं आता ना कि वल्लू करना है, तो हम जाएंगे अपने जो सामने वाला सीगा ना मुदारे का, जमा वाला, हमने कहा है तुवल्लूना। अब तुवल्लूना की यहाँ पर सिर्फ नून ड्रॉप होके अलिफ आ गया, तो ये बन गया ला तुवल्लू। अब ला तुवल्लू से हमें पता चल गया कि वल्ली था तो वल्लू ही होगा। अब नीचे अगर तुवल्लू है तो ऊपर वल्लऊ नहीं हो सकता। तो ये जो नहीं है फेले नहीं, इससे भी हम थोड़ा सा हिंट लेके जा सकते हैं कि अच्छा ये इसकी जमा ऐसे हो सकती है, वल्ली उवल्ली, वल्लू नुवल्ली, यानी कि सामने का जवाब हमने अपनी तरफ से देना है। सिंगुलर होगा तो सिंगुलर, ये हमारी उसी तरह से जो QC1 वाली प्रैक्टिस होती आ रही है। अच्छा जी, फेल और फाइल हो गया, जो सॉरी फेल अमर, फेल मुदारे हो गया, फेल माजी भी हो गया। अब आ गया है अल्लामा से मुअल्लिफ और मुअल्लम। अब यहाँ पर क्योंकि हमारे पास एक थोड़ी सी आ गई है, तब्दीली आ गई है, हमारे पास मीम जैसा कोई सेहतमंद हर्फ नहीं है। अब वल्ला से हमने कैसे बनाना है, इसको भी हम देखते हैं। वल्ला से हम करेंगे मुवल्लिन, जैसे हमने कहा था हदा से क्या बनाया था, हाँ दिन,
हादिन। आ से क्या बनाया था? दाइन। इस तरह से कला से क्या बनाया था? तालिन। अब यहाँ पर क्या करना है कि हम जब हमने मजीद सी शुरू की थी हमने कहा था कि जो हमारा टेबल होगा ना उसके मुंह पर एक मुंह लगा देना, मीम पेश मुंह लगा देना है। अब हम उसी तरह से जो वल्ला वाला टेबल है इसको हमने उतारना वैसे, या दो जेर वाली हमने बनानी है फाइल। तो हम क्या करेंगे? मुवल्लिन मुवल्लन। अब एक मुवल्लिन मुवल्लन याद करना है। इसके बाद जो आगे जितने भी कमजोर की इस टाइप वाले हैं उनकी हमने इसम फाइल मफूल वाली जितनी भी हमने स्लाइड्स देखनी उसमें हम इसी तरह से देखेंगे। ठीक है जी, एक टेबल हमें याद करना पड़ेगा। हमने याद किया मुअल्लिमुन मुअल्लामुन, उसके बाद हमने देखा मुस्लिमुन मुस्लिम, मुवल्लिन, इसको पक्का सच्चा याद करना है, मुवल्लिन मुवल्लन। अच्छा किसी का बेबी बहुत तंग कर रहा है उसको देख ले, यहाँ से थोड़ी सी वीडियो देख लीजिएगा। इसके बाद हमने किया था तालीम। अब यहाँ पर चूंकि ये कमजोर हर्फ है तो इसकी जो मस्तर की फॉर्म है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, आ जाएगी तौलियातुन। अब तौलियातुन, तौलिया किसको कहते हैं? जिसे हम मुंह पे फेरते हैं, जिस्म पे फेरते हैं। अब आपको वल्ला का मतलब याद रहेगा? जी अब याद रहेगा। लेकिन अब हमने ये नहीं कहना ये बाब तौलिया आ गया, नहीं, ये बाब कौन सा रहेगा? बाब तफील ही रहेगा। सिर्फ फर्क क्या होगा? अल्लामा से तालीम बनेगा, वल्ला से तौलियातुन। ठीक हो गया जी। तौलिया अगर हम इसको ता को साकिन कर देते हैं तो हा बन जाती है ना, तो हम वैसे भी जानते ही हैं, इतना तो हमें अंदाजा है कि जैसे मुस्लिमा तू से मुस्लिमा, मुस्लिमा मोमिना, इसी तरह से तौलिया। और हम तनवीन इसलिए पढ़ते हैं ताकि याद रहें कि ये जो मसादिर हैं ये अस्मा हैं। तो वल्ला से तौलिया। अब यहाँ पर हमारा टेबल होगा कंप्लीट। अच्छा जी, हल अंता मुवल्लिन, हम क्या कहेंगे? नाम आना मुवल्लिन। क्या आप फेरने वाले हैं? जी हाँ, मैं फेरने वाला हूँ। हल अंतुम मुवल्लूना, और अगर मैं कहूँ कि आप इसकी दूसरी जमा बनाएं या नून वाली, तो क्या बना लेंगे? मुवल्लीना। ये हमने जब QC2 शुरू किया था तो हमने कहा था, जब शुरू में मुत्तकीन आया था तो हमने कहा था मुत्तकीन की दोनों तरह की जमा बनानी है। तो इसी तरह से मुवल्लिन की दो जेर को देखते हुए हमने ये नहीं कह देना कि इसकी सिर्फ या नून वाली जमा आएगी, ठीक है, इसकी दोनों तरह की जमा आएगी। मुवल्लिन क्यों बन गया? क्योंकि हमारे पास ये मजबूरी थी कि आखिरी जो हमारे पास हर्फ था वो कमजोर था, तो कमजोर गिर गया तो ये हमारे पास मुवल्लिन बच गया। अच्छा जी, ये हमारा पूरा टेबल यहाँ पर आ गया। इसको हम अब कैसे दोहराएंगे? एक दफा मैं पढ़ूंगी, इसके बाद आप 3 लोग हैंड रेस कीजिएगा। अच्छा जी, सिस्टर फेरोजा, सिस्टर जवेरिया, सिस्टर रुबीना, बाकी अभी डाउन कर लें। सिस्टर फेरोजा, सिस्टर जवेरिया, सिस्टर रुबीना, आप तीनों ने पढ़ना। एक दफा टेबल मैं पढ़ देती हूँ। वल्ला वल्लौ वल्लैता वल्लैतु वल्लैतुम वल्लैना वल्लत युवल्ली युवल्लूना तुवल्ली उवल्ली तुवल्लूना नुवल्ली हिया तुवल्ली वल्ली वल्लू ला तुवल्ली ला तुवल्लू मुवल्लिन मुवल्लन और तौलियतुन। हमने कहा था हादिन महदियुन मुवल्लिन मुवल्लन। ये जब जितने भी हमारे यहाँ ना कमजोर वाले एंड पे ये कमजोर हर्फ होगा उसकी इसी तरह से हम बनाएंगे। जैसे हम कह रहे हैं मुवल्लिन मुवल्लन, मुत्तकिन मुत्तकन। ठीक हो गया? ये जब हम आगे बढ़ते जाएंगे अपने टेबल करते जाएंगे हमें अंदाजा होता जाएगा। ये सिस्टर शुरू कीजिएगा, बिस्मिल्लाह। सिस्टर वल्ला वल्लौ वल्लैता वल्ला वल्लौ वल्लैता वल्लैतु वल्लैतुम वल्लैना वल्लत। अल्हम्दुलिल्लाह। सिस्टर जवेरिया आ जाइए। युवल्ली युवल्ली युवल्लूना तुवल्ली उवल्ली तुवल्लूना नुवल्ली तुवल्ली। अल्हम्दुलिल्लाह।
ولی ولو لا تولی لا تولو مولن مولن اور تولیتن. تولیتن ٹھیک ہو گیا جی الحمدللہ. اب نیکسٹ تین جی لوگ آ آ جائیں. گیا تھا. جنہوں نے پڑھ لیا وہ اپنے ڈاؤن کیجیے ہینڈ تاکہ مجھے پتا چل جائے کون کون پڑھ چکا. سسٹر کومل اور سسٹر رفت ہیں, سسٹر وجیحہ. آئی فون کے نام سے سسٹر رفت ہے نا, آپ تینوں پڑھ جی جی. لیجیے. ولا. جی جی شروع کون پڑھنے کیجیے. لگے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا ولو ولیتا ولیتو ولیتم ولینا ولت. اگلا میں یا پڑھوں. ولت. جی جی پڑھیے پڑھیے. یولی یولونا تولی اولی تولونا نولی تولی ولن ولی ولو لا تولی لا تولو مولن مولن تولیتن. تولیتن. تین اور سسٹر آئیں گی. اچھا جی, سسٹر ناہید, سسٹر تسکین اور سسٹر تنزیل. ٹھیک ہے. سسٹر سائمہ سمیہ ہے یا سائمہ سمیہ ہے؟ سسٹر سمیہ آپ اینڈ پہ کریں گی, ٹھیک ہے. یہ تین لوگوں کے بعد آپ کریں گی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا ولو ولیتا ولیتو ولیتم ولینا ولت. یولی یولونا اب نیکسٹ یولی. سسٹر, ہاں نیکسٹ سسٹر پڑھیں گی. جی جی پڑھیے پڑھیے, سب خاموش ہو جی گئے. یولی یولونا تولی اولی تولونا نولی حیا تولی ہیا تولی, حیا نہیں, ولی. ہیا تولی. جی بسم اللہ الرحمن ولی. الرحیم. جی یہ میں نے پڑھنا تھا نا. جی جی پڑھیے, جی بسم یولی سے اللہ شروع کریں. الرحمن الرحیم. اچھا. یولی یولونا تولی اولی تولونا نولی ہیا تولی. اب جو تیسری سسٹر تھی وہ ولی سے شروع کیجیے. ولی ولو لا تولی لا تولو مولن مولن تولیتن. تولیتن. سسٹر سائمہ نے سمیہ نے پڑھ لیا یا ابھی پڑھنا ہے؟ مجھے پڑھنا ہے ابھی. ابھی پڑھنا. آپ پورا ٹیبل ولہ سے شروع کیجیے, روانی سے پڑھنا, ٹھیک ہے. جی. ولا ولو ولیتا ولیتو ولیتم ولینا ہیا ولت. یولی یولونا تولی اولی تولونا نولی ہیا تولی ولی ولو لا تولی لا تولو مولن مولن تولیتن. تولیتن. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اچھا جی, اب جو ہینڈ ریز ہوں گے وہ اسی پیٹرن والا دوسرا ٹیبل پڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. آپ جس نے پڑھ لیا وہ سب اپنے ہینڈ ڈاؤن کر لیجیے. صرف اب جو پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہا اس نے ہینڈ ریز کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ ہمارا الحمدللہ یہاں پر ٹیبل ہو گیا ہے کمپلیٹ. ولا یولی ولی مولن مولن تولیتن. ٹھیک ہو گیا جی. ولو ولت, یاد رکھنے کی باتیں, یولونا اور ولو, یہ ہم نے اچھی طرح سے بات یاد رکھنی ہے. اچھا جی, وہ پھیرنے والا ہے اپنا منہ دین سے. اب ہم کیا کریں گے, ہم پہلے پہچانیں گے سیگا کو, ٹھیک ہے. پھیرنے والا, پھیرنے والا کی کیا عربی پڑھی ہم نے؟ فائل, اسم فائل, مولن. مولن. اسم فاعل. اچھا جی, یہ فکرہ شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ ہوا وہ. اب ہمارا یہ بن گیا ہوا مولن, اور یہ جو ہے نا سے کے لیے ہم ان لگا لیں گے. کیا آ جائے گا اب؟ ہوا مولن ان دین دی نو دینی فی کر دیں گے. الدین فی آپ اس الدین. کو ابھی ساکن بھی کر سکتے ہیں. ہوا مولن ان. ٹھیک ہو کیا جی. اس کے بعد ہے ما ولاہم عن قبلتہم. ماں کا ہم نے
जो जो तर्जमे पढ़े हैं यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं। माँ का हम क्या नहीं है वहाँ। बताइएगा ये जरा। क्या है, जो यहाँ पर क्या या नहीं वाला हो क्या सकता है। चलिए नहीं ठीक है, हम क्या वाला लगाते हैं। जो इसके भी हो बाद है सकता है। वल्ला। वल्ला का क्या माना लेंगे? उसने फेरा उसने फेरा वो उसने उसने फेरा। फेरा। ठीक है, बाद में हम इसका रवा भी बना लेंगे, अभी हम सीख रहे हैं। हुम से क्या बनाएंगे? हुम वो वो सब जमा सबको। के लिए वो सब, और एक वो जो हम वो जमायर जमा। वाला अटैच वाला यूज करते हैं, उन सब या उन्हें वाला उन्हें तर्जुमा हम करते हैं ना। उन्हें अच्छा जी, क्या अन उन सब ने फेरा, से ये क्या है। उन सब अच्छा जी, किबलाती। किबलाती तो हमें पता है ना, किबला को कहते हैं किबला। और हिम, ती में इसका माना हो गया उनका। जैसे हमने कहा दीनी, दी हम कहते हैं दीनुहु दीनुहुम, रब्बिही रब्बु रब्बिहिम। जैसे हम कहते हैं अगर तो हम इसको करेंगे, दो अल्फाज को जोड़ेंगे तो उसका दीन, उसका रब। इसी तरह से किबलाती, किबलाती हिम, उन सब का किबला। अब हम इसको पूरे को जोड़ते हैं। माँ यानी कि क्या, अब क्या और उसने फेरा मर्ज करेंगे। जैसे समी अल्लाह को हमने कहा था अल्लाह ने सुन ली, आप कहेंगे किसने फेरा। उसने फेरा को हम क्या के साथ मर्ज करके कहेंगे किसने फेरा। किसने फेरा उन सबको उनके किबला से। ये आयत मुबारका है। आप देखिएगा दूसरे पारा में शुरू वाली लाइनों में देखिएगा। ये यहूद नसारा ने क्वेश्चन किया था जब किबला बदल गया था ना। ये तो सबको पता ही है ना, कि जब किबला का हाँ जी। हुक्म हुआ था तब्दीली का, तो तब उन्होंने कहा था हैरत से कि किसने उन्हें फेर दिया उनके किबला से। ठीक हो गया। अब है हल तू वल्ली, यहाँ हाँ लिखा हुआ, हाँ में जवाब नहीं देना। ठीक है। और एक और चीज यहाँ पर नोट कर लीजिए कि जैसे अनिद दीन है, हम यहाँ पर भी अनिद दीन इसी तरह से कर लेंगे। ठीक है। अब है हल तू वल्ली, हम इसका जवाब ला से करेंगे। माँ से क्यों नहीं किया? मुदारे नहीं है, ये माजी नहीं है ना, माजी नहीं है, ये है मुजारे। मुदारे। ला हाँ, माजी नहीं है। तुवल्ली, तुवल्ली की जगह हम क्या लगा लेंगे? ओवली, तुवल्ली। वल्ली और वजहा का यहाँ हम क्या कहेंगे? वजही 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 माने दीनी। नहीं, मैं अपना मुंह नहीं फेरती दीन से। ठीक हो गया। अच्छा जी, फेरता भी कर सकते क्योंकि अभी हम सिर्फ अपने दाएं हाथ के ही कर रहे हैं ना इशारे, कभी मुजक्कर वाला माना लेते हैं। नहीं, मैं अपना मुंह दीन से नहीं फेरता। ठीक हो गया। ये वाला यहाँ तक सबका नाम क्लियर तो है नहीं आएगा, जी? सिस्टर जो अरबी पहला में नाम है, जवाब दीजिए। मुझे समझ नहीं आई, दोबारा बोलिएगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, नाम लिखा, नाम आएगा क्योंकि अरबी हाँ में में हाँ जवाब में देना है। जवाब, आपने तो हाँ में नाम जवाब तो नहीं नहीं आएगा। देना, आपने नहीं में जवाब देना है। क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं कि आप अपना मुंह दीन से फेरें, हम ये नहीं चाहते। तो हमने इसका जवाब ला से देना है। अगर आपकी बुक में भी हाँ लिखा है तो इसको नहीं कर लीजिए। ठीक है। ये मैंने वो लॉजिकली बताया बुक था। में नहीं वैसे लिखा। अगर इसको यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पे जवाब नाम ही आना चाहिए। मैंने इसलिए बात की, हम इसका जवाब हाँ से नहीं देंगे, हम कहेंगे नहीं नहीं, मैं अपना मुंह दीन से नहीं फेरती। ठीक हो गया। सिस्टर अच्छा, जो पहला जुमला है उसमें भी मुंह है, तो वो फिर वहां पे भी हम लिखेंगे हाँ जी, वजह। एग्जैक्टली यही मैं पूछना चाह रही हूँ। हाँ ठीक हो गया। हुआ मुवल्ली वजह का अनिद्दीन आएगा ना यहाँ पे। वजहू वजहा, वजहा हु हु आएगा, मैं मिस कर गई इसको। वजही जज़ाकल्लाहु खैरा। वजहा, वजहा हम कहते हैं चेहरे को। हु क्यों हमने लगाया? हुआ की वजह से उसका हम हु लगाएंगे। ठीक है। उसका अपना मुंह। अब वो किसी का मुंह तो नहीं फेरेगा ना, वो अपना ही फेरेगा ना। अब देखें यहाँ पर तुवल्ली था तो तुम के साथ हमने जो जमीर यूज की थी वो का की थी। जब हमने अपनी बात की तो हमने या वाली जमीर। ये इसको भी आज हम क्लियर करते हैं। यहाँ पर जब हुआ आ जाए जमीर हु वाली आएगी, अंता आ जाए जमीर का की आ जाएगी, अना आ अना। जाए कौन सी जमीर आएगी? जल्दी से बता दें। या का वाली। ठीक हो गया जी। और अगर हुम होता, हुम ही आ जाना था। नहनु होता, ना आ जाना ना। था। ठीक हो गया जी। और अगर मोनस आता है तो फिर हा आ जाया करता है।
तो ये इस चीज का ख्याल रखना है, हुआ मुवल्लिन वजहहू अनिद्दीनी। ठीक हो गया? अब यहाँ तक ये हमारा कंप्लीट है, आजान भी शुरू हो गई है। अब हम ऐसा कर लेते हैं कि सिस्टर कमर नहीं, आपने हैंड रेज किया था, आप नमाज पढ़ के तो नज्जा वाला टेबल कोशिश कीजिएगा पढ़ने की, ठीक है? जब वल्लाह की तरह है, नज्जा नज्जाऊ, इसी तरह से जब हम यूनज्जी करेंगे तो यूनज्जू ना कर लेंगे। अभी हम क्लास इंशाल्लाह। कर लेते हैं क्योंकि आजान शुरू हो गई। ठीक है, चलिए जी, अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैरन। व इय्याकुम। बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए।